Hello, my dear students. I welcome you once again in this social science class. Today, we are going to start with a new chapter of history, chapter number 6, Towns, Traders and Craftspersons. In this chapter, we are going to study about the towns, traders and craftspersons of the medieval era. Right? So, children, we have studied in the 6th class also that there were formation of towns, Janpad, Mahajanpad. We have studied that how the towns came into existence. So here we are going to study the towns in detail. What happened actually that the towns can be divided into many kinds of towns. There were many kinds of towns, like there can be a temple town, there can be an administrative center, a commercial town or a port town. These are just few possibilities. इस तरह के towns हो सकते थे जो temple towns होते थे, administrative centers जहाँ से राजकाज चलाया जाता था, कमर्शियल टाउन्स जहाँ पर कमर्शियल एक्टिविटीज़ हो रही हैं, या फिर पोर्ट टाउन जहाँ से एक्सपोर्ट इम्पोर्ट हो रहा है. सो दीज वर मेनी काइंड्स ऑफ टाउन्स. And some towns, these perform combined functions also, like they can be administrative centers as well as temple towns, as well as commercial centers, as well as the centers of craft production. मतलब एक ही टाउन में बहुत सारी चीज़ें भी तो हो सकती है ना. तो there can be towns with combined which perform many functions, like they can be administrative centers, temple towns, commercial centers and the centers for craft production. So we are going to study about these towns in detail in this chapter. First that we are going to take is the town of Tanjavur. Tanjavur, as we have studied in chapter 2, was a very important city, and it was the capital of Chola dynasty. It was established by Chola rulers, and it was the capital of Cholas 1,000 years ago, and it was a very, very important city because it was an administrative center also, it was a temple town also, and it was a very big center of other commercial activities and crafts production also. So, Tanjavur was situated on the bank of river Kaveri. The perennial river Kaveri flows near this beautiful town, right? And the biggest temple, Rajrajeshwar, one of the biggest temple of India, Rajrajeshwar temple, जिसे बृहदेश्वर temple भी कहते हैं, they are one and the same, Rajrajeshwar temple or the Brihadeshwar temple. It was built by the king Rajraja Chola. You remember we have studied about Rajraja. He was the ruler of Chola dynasty, and he built this temple in Tanjavur. Now this temple has a massive shivling. One of the biggest shivling is placed inside this temple, and it has a beautiful architecture. इसका architecture भी बहुत खूबसूरत है, and the name of the architect is Kunjar Mallan Rajaraja Peruntha Chan, and his name was written on a wall inside the temple. He has proudly carved his name on the temple wall, right? So the people had a great respect for this temple. They had all the praises for the architect of this temple. And besides the temple, और क्या-क्या चीज़ें थी तंजावुर में? There were palaces of the kings. Palaces थे जिसमें बहुत सारे pavilions या मंडप्स हुआ करते थे, and kings used to held their court in these मंडपास या pavilions या समझ लो बड़े बड़े halls होते थे जिसमें king अपनी court लगाते थे, and they issue orders to their subordinates in these courts, and there were also barracks for the army. ठीक है? Now there were markets also. These markets were full of the products like grains, spices, cloth, jewelry. ये सभी चीज़ें तंजावुर के टाउन से क्या की जाती थी? सेल की जाती थी. And water supply for the town comes from wells and tanks. We have studied कि Chola rulers जो थे, they were very good administrators, and they took care of the people of their dynasty very well. तो उन्होंने लोगों के लिए wells और tanks से water supply का arrangement किया हुआ था. Then there were Salia weavers which lived around Tanjavur and Uraiyar, and they
वर द वीवर्स है, इसका मतलब वो क्लॉथ प्रोड्यूस करते हैं, तो दे वर बिजी इन प्रोड्यूसिंग क्लॉथ्स to be used in temple festivals. They also weave fine cottons for the kings and the nobility, मतलब जो noble class people है, king है, इनकी families के लिए वो fine cottons weave करते थे, and similarly coarse cotton for the masses, because fine cotton was very expensive, तो वो केवल किंग्स और उनके नोबल्स ही यूज़ कर पाते थे, और मासेस के लिए कोर्स कॉटन भी यही वीवर्स वीव करते थे. कौन से वीवर्स? वी आर टॉकिंग अबाउट द सालिया वीवर्स ऑफ थंजावुर एंड द नियर बाय टाउन उरैयार. क्लियर? सिमिलरली देयर वॉज अ टाउन कॉल्ड स्वामी मलाई, और स्वामी मलाई में स्कल्प्टर्स रहते थे. दैट मीन्स स्कल्प्टर्स मीन्स जो मूर्तियाँ बनाते हैं, एंड दे यूज टू मेक एक्सक्यूसाइड ब्रॉन्ज आइडल्स एंड टॉल ऑर्नामेंटल बेल मेटल लैम्प्स. ठीक है, बेल मेटल के लैम्प्स और ब्रॉन्ज के आइडल्स बनाते थे. वो कहाँ रहते थे? दीज sculptors used to live at Swami Malai. So what we have studied in this para, that Tanjavur was a very big city. It was established by the Chola rulers 1000 years ago. It was the capital of Chola rulers. There was Rajrajeshwar temple in the city, and it had a massive शिवलिंग, और वहाँ पर उनके जो आर्किटेक्ट हैं उनका नाम भी खुदा हुआ है, कुंजरा मल्लन राजराजा पेरुंथा चंद, उनका नाम वहाँ पर खुदा हुआ है. Similarly, there were palaces in the city, and kings used to hold their courts in these palaces, and also there were barracks for the army. Then there were markets also, where the people used to sell grain, spices, cloth and jewelry. The water supply comes from wells and tanks. Salia weavers, they produce cloth for flags to be used in the temple festival. temple festivals के लिए वो flags weave करते थे. Fine cottons for the king and nobility, and coarse cotton for the masses. Similarly, जो स्वामी मलाई के स्थापतीज या sculptors थे, they used to make bronze idols and tall ornamental bell metal lamps. ठीक है, इतना समझ में आ गया सबको? नाउ वी कम टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ टाउन्स, दोज आर टेम्पल टाउन्स एंड पिलग्रिमेज सेंटर्स. वी हैव स्टडीड अबाउट अ टेम्पल टाउन थंजावुर. अभी हमने पढ़ा ना थंजावुर इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ अ टेम्पल टाउन एज वेल एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर. वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर भी था, एंड इट वॉज अ टेम्पल टाउन ऑल्सो. टेम्पल टाउन्स के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं. वॉट वी हैव स्टडीड दैट टेम्पल टाउन्स जो होते हैं वो अर्बनाइजेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न हमें शो करते हैं. कैसे वहाँ पर अर्बनाइजेशन होता था या कैसे टाउन्स डेवलप हो जाते थे? यू रिमेंबर दैट वी हैव स्टडीड कि टेम्पल्स वर ऑफन द सेंट्रल टू द इकोनॉमी एंड सोसाइटी. टेम्पल जो था वो सेंटर होता था इकोनॉमी का और सोसाइटी का. जो रूलर्स होते थे, दे यूज टू बिल्ड बिग टेम्पल्स टू शो देयर डिवोशन टू द डाइटीज एज वेल एज टू शो देयर वेल्थ एंड पावर. अपनी शक्ति को प्रदर्शित करने के लिए, अपनी वेल्थ को प्रदर्शित करने के लिए, एज वेल एज अपनी डिवोशन को, भगवान के प्रति उनके डिवोशन को एक्सप्रेस करने के लिए, दे यूज टू बिल्ड बिग टेम्पल्स. सो थंजावुर वॉज सच अ टाउन वेयर राजराजेश्वर टेम्पल वॉज बिल्ट बाय राजराजा. और फिर क्या होता था कि दीज रूलर्स, दे यूज टू give lots of grants of land and money to the priest and to these temples to carry out the rituals और फेस्टिवल सेलिब्रेट करने के लिए जो भी वहाँ पर खर्चा आता है रिचुअल्स करने के लिए, उन सब के लिए बहुत सारा पैसा, लैंड, ये सभी चीज़ें डोनेशन में आती थी उनको. ठीक है, मंदिर के एडमिनिस्ट्रेशन को. सिमिलरली जो पिलग्रिम्स आते थे, दूर दूर से लोग देखने के लिए आते थे, वो भी बहुत सारा डोनेशंस देते थे. सो इस डोनेशन को कहाँ यूज़ किया जाता था? फॉर द फेस्टिवल, फॉर द मेंटेनेंस ऑफ फेस्टिवल, फॉर मेकिंग, फॉर सेलिब्रेटिंग वेरियस फेस्टिवल्स, टू डू ऑल द रिचुअल्स, इन सब के लिए. एज वेल एज जो टेम्पल अथॉरिटीज़ होती थी, दे यूज टू these wealth to finance trade and banking. वो ट्रेड एंड बैंकिंग को फाइनेंस करने के लिए भी कई बार इस वेल्थ का यूज़ करते थे. ठीक है, और इसके साथ साथ क्या होता था, बिकॉज टेम्पल्स यूज टू अट्रैक्ट अ लॉट ऑफ पीपल, और इसीलिए बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ प्रीस्ट, वर्कर्स, आर्टिजन्स, ट्रेडर्स, ये दे कम एंड सेटल नियर द टेम्पल, और इस तरह से टेम्पल टाउन्स बन जाते थे. ठीक है, जैसे आप इमेजिन करो कि कोई टेम्पल है जो बहुत फेमस है, जहाँ दूर दूर से लोग आ रहे हैं, तो क्या होता है, लोग आते हैं तो बहुत सारे
फूल माला की दुकान, प्रसाद की दुकान, मूर्तियों की दुकान, सिमिलरली अदर क्राफ्ट की चीज़ें मिलने लग जाती हैं, फिर खाने पीने की दुकानें खुल जाती हैं। तो इस तरह से बहुत सारे शॉप ओनर्स आके वहाँ बस जाते हैं एंड दैट इज़ हाउ टेम्पल टाउन्स ग्रू इन द मिडीवल एरा। मिडीवल हिस्ट्री जो हम पढ़ रहे हैं उस समय पर इस तरह से टेम्पल टाउन्स ग्रू हो जाते थे। इस तरह के कुछ टेम्पल टाउन्स के एग्जाम्पल्स हैं। भिल्ल स्वामिन टेम्पल इन मध्य प्रदेश जो विदिशा के नाम से फेमस है। टेम्पल नहीं, टेम्पल टाउन। भिल्ल स्वामिन और विदिशा इन मध्य प्रदेश, सोमनाथ इन गुजरात, कांचीपुरम एंड मदुराई इन तमिलनाडु एंड तिरुपति इन आंध्र प्रदेश। ठीक है, दीज आर द टेम्पल टाउन्स, जो कि पहले टेम्पल्स बने वहाँ पर और फिर बाद में लोग आके बस गए तो वो टाउन्स में कन्वर्ट हो गए। सिमिलरली पिलग्रिमेज सेंटर्स यानी जो तीर्थ स्थान थे, दे ऑल्सो स्लोली डेवलप्ड इनटू टाउनशिप्स लाइक वृंदावन इन उत्तर प्रदेश। वृंदावन वॉज अ प्लेस वेयर लॉर्ड कृष्ण his childhood was spent there in Vrindavan and therefore it was a pilgrimage center. So it has now developed into a township. Similarly, Tiruvannamalai in Tamil Nadu, these are the example of two pilgrimage towns. Another example is Ajmer. Ajmer in Rajasthan. It was the capital of Chauhan kings in 12th century. 12th century में चौहान किंग्स की राजधानी हुआ करता था और बाद में जब मुगल्स आ गए तो वो एक सूबा हेडक्वार्टर बन गया मुगल्स के टाइम पे। तो वहाँ पर रिलीजियस कम्युनिटीज़ का को एग्जिस्टेंस हम बहुत अच्छे तरीके से देख पाते हैं। हम पहले क्या देख रहे हैं, वहाँ पर एक हिंदू रूलर था, एक चौहान रूलर्स की राजधानी हुआ करती थी और बाद में मुगल्स आ गए तो इट बिकेम एन एक्सीलेंट एग्जाम्पल ऑफ रिलीजियस को एग्जिस्टेंस। वहाँ पर दोनों तरह के कम्युनिटीज़ के लोग अच्छे से को एग्जिस्ट करते हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है वहाँ पर, जहाँ बहुत से अलग अलग जाति धर्म सब तरह के लोग वहाँ पर आते हैं और उस दरगाह को विज़िट करते हैं। एंड वहाँ पर अजमेर के पास में एक लेक है, पुष्कर लेक, जो कि हिंदू रिलीजियस प्लेस है और वहाँ पर बहुत से पिलग्रिम्स जो हैं वो सदियों से आते हैं। फ्रॉम एंशिएंट टाइम्स इट हैज़ अट्रैक्टेड पिलग्रिम्स फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया। पुष्कर में क्या है, पुष्कर में ब्रह्मा जी का मंदिर है, द ओनली ब्रह्मा टेम्पल इन द कंट्री, सो इट अट्रैक्ट्स पिलग्रिम्स फ्रॉम एंशिएंट टाइम्स। सो यहाँ पर अजमेर में हमें क्या देखने के लिए मिल रहा है, दैट इट इज़ अ पिलग्रिमेज फॉर द मुस्लिम्स ऑल्सो एंड इट इज़ अ पिलग्रिमेज फॉर द Hindus also. So it is a good example of religious coexistence. Understood? In this paragraph, we have to study about the bronze, bell metal and the lost wax technique. ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि चोला की जो ब्रॉन्ज स्टैच्यूज़ हैं दे वर मेड फ्रॉम द लॉस्ट वैक्स टेक्निक और वो बहुत बहुत फेमस थी और अभी भी हैं पूरे विश्व में। जो चोला रूलर्स के द्वारा बनाई गई जो ब्रॉन्ज स्टैच्यूज़ हैं उनकी बहुत वैल्यू है। दे हैव अ लॉट ऑफ इम्पॉर्टेंस इन द आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट में। ठीक है, सो कैसे बनाई जाती थी? ब्रॉन्ज इज़ एन एलॉय कंटेनिंग कॉपर एंड टिन। कॉपर और टिन से बना हुआ एक एलॉय होता है, पर बेल मेटल में क्या करते हैं, इट वॉज इन इट द प्रपोर्शन ऑफ टिन इज़ मोर एज कम्पेयर टू अदर काइंड्स ऑफ ब्रॉन्ज। इसमें टिन का प्रपोर्शन बढ़ा देते हैं तो उससे क्या होता है, अ बेल लाइक साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड। ठीक है, तो कैसे बनाई जाती है, व्हाट इज़ द लॉस्ट वैक्स टेक्निक? इसमें क्या होता है कि एक इमेज बनाते हैं वैक्स की, वैक्स मतलब मोम की एक इमेज बनाते हैं और फिर उसको अच्छे से क्ले से कवर कर देते हैं एंड इट इज़ अलाउड टू ड्राई। जब वो पूरी ड्राई हो जाती है तो उसको हीट करते हैं एंड अ टाइनी होल वॉज मेड इन द क्ले कवर। एक छेद बनाते हैं क्ले कवर में और सारा जो वैक्स है, क्योंकि हीट करेंगे तो वैक्स पिघल जाएगा, द मोल्टन वैक्स इज ड्रेन्ड आउट थ्रू दिस होल और फिर इस मोल्टन मेटल इसी छेद से मोल्टन मेटल को पोर करते हैं। कौन सा मोल्टन मेटल? द बेल मेटल, जिसमें ब्रॉन्ज और में कॉपर और टिन का जो प्रोपोर्शन होता है उसमें टिन का प्रोपोर्शन ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू अदर काइंड्स ऑफ ब्रॉन्ज। तो फिर इस मोल्टन मेटल को इसके अंदर डालते हैं और जब वो पूरा मेटल सूख जाता है, ठंडा हो जाता है, पूरा सॉलिडिफाई हो जाता है तो उस क्ले कवर को हटा देते हैं, ऊपर से क्ले को हटा देते हैं तो अंदर से कैसी मूर्ति निकलती है? बेल मेटल की मूर्ति। दिस इज़ नोन एज लॉस्ट वैक्स टेक्निक। ठीक है, और फिर इस इमेज को क्लीनिंग और पॉलिशिंग की जाती है। सी
how this image is formed. It is an image of Lord Vishnu who is standing over Krishna, a bronze statue of Krishna who is standing over the serpent demon कालिया नाग के ऊपर लॉर्ड कृष्णा की ये मूर्ति है. So this is how the bronze bell metal idols were made using the lost wax technique. ठीक, समझ आया? नेक्स्ट टॉपिक इज अ नेटवर्क ऑफ स्मॉल टाउन्स. देखो क्या हो रहा था कि अब धीरे धीरे क्या होने लगा. फ्रॉम द 18th century सेवरल स्मॉल टाउन्स ऑल्सो केम इनटू एग्जिस्टेंस. छोटे छोटे जो शहर थे वो भी एग्जिस्टेंस में आने लगे. प्रोबेबली दे हैव एमर्ज फ्रॉम लार्ज विलेजेस. बड़े बड़े जो विलेजेस थे वो किस में कन्वर्ट हो गए, वो स्मॉल टाउन्स में कन्वर्ट हो गए. ठीक है. और यूजुअली उनमें क्या पैटर्न देखा जाता था कि दे आर एस्टेब्लिश्ड नियर अ मंडी और नियर अ मार्केट. दे यूजुअली हैड अ मंडपिका. ठीक है, मंडपिका पहले कहते थे, बाद में इट बिकेम्स मंडी. और वहाँ पर क्या होता था, नियर बाय विलेजर्स ब्रॉट देयर प्रोड्यूस टू सेल. ठीक है. इसी तरह से वहाँ पर क्या होता था, दे हैड मार्केट स्ट्रीट्स होती थी जिन्हें हट्टा कहते थे पहले. एंड नाउ इट बिकेम हाट कहते हैं ना. तो हाट की पहले हट्टा बोला जाता था. तो दे ऑल्सो हैड मार्केट स्ट्रीट्स कॉल्ड हट्टा लाइन विद शॉप्स. वहाँ पर बहुत सारी लाइन से शॉप्स होती थी, इसलिए उसे मार्केट स्ट्रीट्स कह रहे हैं. इसके अलावा कुछ ऐसी स्ट्रीट्स होती थी जहाँ पर बहुत सारे आर्टिजन्स आया करते थे, लाइक पॉटर्स, ऑयल प्रेसर्स, शुगर मेकर्स, टॉडी मेकर्स, स्मिथ्स, स्टोन मेसन्स. ये सभी लोग अपनी अपनी कलाकृतियों को बेचने के लिए या अपना अपना प्रोड्यूस को बेचने के लिए आते थे. तो कुछ लोग वहीं रुक गए, वहीं बस गए. एंड सम ट्रैवल फ्रॉम टाउन टू टाउन. और बहुत से लोग वहाँ पर दूर से आते थे, दूर से और पास के टाउन से, टू बाय द लोकल आर्टिकल्स. वो जो लोकल आर्टिकल्स हैं उन्हें ख़रीदने के लिए, और अपने साथ जो वो डिस्टेंट प्लेसेस की चीज़ें लाए हैं, लाइक हॉर्सेस, सॉल्ट, कैम्फर, सैफरन, बीटल नट एंड स्पाइसेस लाइक पेपर. ये सभी चीज़ें खरीदने के लिए ये सभी चीज़ें बेचने के लिए वो वहाँ पर आया करते थे. सो दिस इज़ हाउ द स्मॉल टाउन्स डेवलप्ड अराउंड द मार्केट्स. आ रहा है समझ में? सी दिस पिक्चर, यहाँ पे आपको दिख रहा है. दिस इज़ अ सीन ऑफ अ मार्केट, अ सिटी मार्केट, वेयर many traders are coming from nearby places. They used to sell their products and buy the local articles. तो कुछ लोग यहीं रुक गए, यहीं पर सेटल हो गए. So it became a small town. ठीक है. और फिर क्या हुआ, धीरे धीरे जो सामंत हुआ करते थे, जागीरदार हुआ करते थे, दे बिल्ट देयर पैलेसेस नियर दीज टाउन्स. इन टाउन्स में उन्होंने पैलेसेस बिल्ड कर लिए. एंड दे स्टार्टेड taking taxes from the traders, artisans and articles of trade, and sometimes donated the right to collect these taxes to local temples. कई बार उन्होंने अपना जो राइट था टैक्स कलेक्ट करने का वो वहाँ के टेम्पल्स को दे दिया, जो कि उन्होंने खुद ही बनवाए थे, which were built by themselves or by rich merchants. ठीक है. इस तरह के इंस्क्रिप्शंस में देखने से पता चलता है कि सामंता लोग जो थे, जो ज़मींदार हुआ करते थे, वो अपने पैलेसेस बना के वहाँ रहने लग गए थे. एंड दे हैव स्टार्टेड लेविंग टैक्सेस ऑन ट्रेडर्स, आर्टिजन्स एंड आर्टिकल्स ऑफ ट्रेड. एंड कभी कभी अपना जो राइट होता था वो टेम्पल अथॉरिटीज़ को भी दे देते थे. मतलब टेम्पल की जो अथॉरिटीज़ हैं वो भी लोगों से क्या कलेक्ट करती थी, टैक्सेस कलेक्ट करती थी. देखो एक टेक्स्ट दिया हुआ है. द फॉलोइंग इज अ समरी फ्रॉम अ 10th century इंस्क्रिप्शन फ्रॉम राजस्थान से ये इंस्क्रिप्शन मिला है, जिसमें बहुत सारे टैक्सेस का जिक्र है. टैक्सेस के बारे में बताया गया है. लाइक देयर वर टैक्सेस इन काइंड ऑन शुगर एंड जैगरी. काइंड मतलब मनी के रूप में नहीं. टैक्सेस या तो कैश में होगा या काइंड में होगा. या तो मनी के रूप में टैक्स दिया जाए या फिर जो प्रोडक्ट है वही टैक्स के रूप में दिया जाता था. लाइक शुगर एंड जैगरी, डाइज, थ्रेड, कॉटन, कोकोनट्स, सॉल्ट, अरेका नट्स, बटर, सेसमी ऑयल, क्लॉथ, इन सब के ऊपर टैक्सेस लगते थे. ठीक है. एंड बिसाइड्स देयर वर टैक्सेस ऑन ट्रेडर्स. इसके अलावा जो ये सब तो प्रोड्यूसर्स हैं, इन चीज़ों के जो प्रोड्यूस कर रहे हैं उन्हें टैक्स देना पड़ेगा. कॉटन के, कोकोनट, अरेका नट्स, बटर, सेसमी ऑयल, इन सब के जो प्रोड्यूसर्स हैं उन्हें टैक्स देना पड़ेगा. सिमिलरली जो ट्रेडर्स हैं जो कि सामान प्रोडक्ट्स को बेचते हैं, लाइक मेटल गुड्स, डिस्टिलर्स, ऑयल, कैटल फॉडर एंड लोड्स ऑफ ग्रेन, इनके ऊपर भी
टैक्सेस लगता था. सम ऑफ दीज वर कलेक्टेड इन काइंड वाइल अदर्स वर कलेक्टेड इन कैश. कुछ टैक्सेस जो थे वो काइंड में कलेक्ट किए जाते थे इन द फॉर्म ऑफ द प्रोडक्ट्स एंड सम वर कलेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ कैश. ठीक है, टैक्सेस जो होते हैं वो कैश में या काइंड में कलेक्ट किए जाते थे. सो दिस इज़ हाउ वी हैव कंप्लीटेड आवर टॉपिक अ नेटवर्क ऑफ स्मॉल टाउन्स. आई होप यू हैव अंडरस्टूड कि कैसे टेम्पल टाउन स्मॉल टाउन्स जो हैं वो मार्केट के अराउंड में डेवलप हो गए. ठीक है, इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल कंटिन्यू विद द फर्दर टॉपिक्स. सो आई होप you have understood all these things that I have told you today. Goodbye for now. Have a great day.